afternoon to one and all present here. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I, Sneha, B.Pharm second year student, on behalf of Sanskar Educational Group, feel pleasure to extend a very warm welcome each one of you in this motivational session of Young Mind Movement, organized in the memory of our beloved late Shri Sundarlal Gupta ji, father of Honorable Chairman Sir. The Young Mind Movement, led by Sadhguru Sakshi Shri Ji, is aimed at empowering young individuals with the tools and techniques necessary to navigate the challenges of modern life with ease and grace. We are honored to have amongst us our eminent guest, Sadhguru Sakshi Shri Ji, who is a spiritual master and the founder of Young Mind Movement. He is known for his unique approach towards personal and spiritual growth. I request our Honorable Chairman Sir, Shri Manoj Kumar Gupta Ji, to welcome Sadhguru Sakshi Shri Ji. Sir, please. Thank you so much, sir. Now I request respected Director Ma'am, Dr. Babita Kumar Ma'am, to welcome Honorable Chairman Sir. Ma'am, please. Now I again request Director Ma'am to welcome Mrs. Chairman Manisha Gupta Ma'am. Thank you so much, ma'am. Let us start the event with the lighting of lamp. I request all the dignitaries to come forward for lighting of lamp, please. Thank you, everyone. Now, I request Guruji to take his seat on dais. Now, I would like to invite Ms. Deepti Agarwal ma'am to introduce our eminent guest, Sadhguru Sakshi Shri Ji. Good afternoon, one and all present here.
Sadhguru Shakshi Shri Ji is an enlightened master who has founded Science Divine to spread the message of love and meditation all over the world for creating a new humanity that would live a life filled with everlasting happiness while simultaneously enjoying the fruits of material riches and prosperity. Through his Science Divine life, transforming workshops and seminars, Guruji has transformed the lives of millions who are now leading a stress-free, successful and happy life all over the world. Guruji is bestowed with immense divine energy and cosmic powers which allows him to negotiate the dark corners of people's past, present and future course of life and guide them to tread the path of enlightenment. Guruji, filled with unconditional love, works tirelessly toward the physical, mental, and spiritual well-being of all. His ability to unfold the complex engineering of life, an outcome of his profound experience of the self, guides us to lead a conscious life of fulfillment. Guruji, it's our great privilege and honor to have you with us today. Now, I would like to request Guruji to bless us with his motivational and spiritual thoughts and help us to rediscover our new meaning of joyful living by undergoing inner transformation. Guruji, please. परम आदरणीय चेयरमैन संस्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आदरणीय मिसेस चेयरमैन मनीषा जी, आज स्वर्गीय श्री सुंदरलाल गुप्ता जैसे महापुरुष की पुण्य स्मृति में प्यारे बच्चों के साथ अंतर संवाद का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें सबसे पहले मैं परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल गुप्ता जी की स्मृति को आप सबकी ओर से प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा आपका आज का अंतर संवाद वास्तव में आपके जीवन और कैरियर में रूपांतरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का शुभारंभ करेगा। किसी संत के अद्भुत वचन है, बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। विराट संपदा भरी पड़ी है इस अस्तित्व में, लेकिन हम अभागे रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। सारी शिक्षा का अर्थ है कि उस विराट संपदा का तुमसे परिचय करा दी। तुम्हारी विराट संपदा जो तुम्हारे भीतर निहित है, वह तुमको जीवन में उपलब्ध करा दी जाए, यही शिक्षा का उद्देश्य है। अभी आते समय मैडम मिसेस चेयरमैन से बात हो रही थी। बात करते करते मेरे प्राणों में ये बात उठी कि आज मैं इस चर्चा का शुभारंभ भगवान बुद्ध के जीवन के अंतिम वचन से करूंगा। उनका अंतिम वचन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, बी लाइट अंडू योर सेल्फ। दूसरे शब्दों में, कभी किसी का अनुकरण मत करना। तो जब किसी का अनुकरण तुम नहीं करोगे तो कैसे जीवन को जियोगे? उन्होंने कहा, अपने भीतर के विवेक को पैदा करना, और तुम्हारे भीतर का विवेक जग जाए तब तुम इस जीवन में
उस विराट संपदा को प्राप्त कर सकते हो जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता है। यानी उन्होंने कहा कि अपने विवेक को जगाओ, और विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यानी तुम किसी गुरु के पीछे मत पड़ो, किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है अपने भीतर के गुरु तत्व को जगाने की, अपने भीतर के विवेक को जगाने की। ये भीतर का विवेक कैसे जगेगा, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और परम दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी शिक्षा प्रणाली आपके विवेक को जगाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हम सिर्फ आपको ज्ञान के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कुछ सूचनाएं देते हैं, एक आपके ब्रेन में फीड करते हैं, और उसको मेमोराइज करने के लिए, उसको स्मृति में बनाए रखने के लिए तरह तरह से आपको ठोकते, पीटते, समझाते, और एन केन प्रकारेण आप उसे अपने खोपड़ी में भीतर भर लें और परीक्षा आने पर उसे उड़ेल दें। आज की सारी शिक्षा इसी व्यवस्था तक सीमित हो गई है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के प्रारूप और मूल स्वरूप में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि हम आपके विवेक को जगा सकें। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहता हूं, जिन्हें आपने सिर्फ अच्छी तरह समझ लिया तो आपकी जिंदगी आज से ही बदलनी शुरू हो सकती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आप परिपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो और अपने भीतर के विवेक को जगाओ। अब प्रश्न उठता है, आपके भीतर का विवेक कैसे जगे? आपको पता होगा कि सारी दुनिया में योग एकमात्र ऐसा अद्भुत विज्ञान उपलब्ध कराता है जिसका एक ही उद्देश्य है कि तुम अपने भीतर अंतर्निहित समस्त शक्तियों का विस्फोट कर सको। योग विज्ञान का एक ही उद्देश्य है, वो कहता है कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां निहित है। यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी संपूर्ण विराट ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप आपके भीतर निहित है, आपके मस्तिष्क में निहित है। और ये जो अनंत शक्तियां तुम्हारे भीतर निहित है, सारा योग विज्ञान उन शक्तियों को जगाने का विज्ञान है। और उस विज्ञान का सार क्या है वो तो मैं बताना चाहता हूं। उस योग का विज्ञान कहता है कि तुम्हारे भीतर जो अनंत शक्तियां हैं वह स्वचेतन होने से ही जागने लगती हैं। यह एक वाक्य पूरे योग विज्ञान का सार है। यानी तुम्हारी अनंत शक्तियां स्वचेतन होने से जागने लगती हैं। स्वचेतन होने का अर्थ है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्वयं के प्रति सजग होने से, स्वयं के प्रति जागरूक होने से हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियां जागती। तो सारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तुम्हें जागरूक बनाए, तुम्हें स्वयं के प्रति सजग बनाए, तुम्हारे भीतर अवेयरनेस पैदा करे। और ये अवेयरनेस पैदा करने वाली शिक्षा जो पहले भारतवर्ष ने सारी दुनिया को दी थी, उसे सारी दुनिया भूल चुकी है। और यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से मैं उसी भारतवर्ष की विरासत को फिर से जगाना चाहता हूं आपके माध्यम से, और उसे आपके ही माध्यम से सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूं। यही मेरे यंग माइंड मूवमेंट का विराट उद्देश्य है। और इसमें सफलता तभी मिल सकती है जब जो सुन रहे हैं आप मेरे भीतर से, उसे सिर्फ 45 मिनट गहनता से सुन लीजिए
उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को भी आमंत्रित करूंगा, आपके हृदय से उठने वाले प्रश्नों का भी समाधान करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके भीतर एक हंसता हुआ नया जीवन प्रकट हो सके, पैदा हो सके। तो पहली बात, स्वचेतन यानी अवेयरनेस मूल आयाम है जीवन के भीतर छिपी हुई शक्तियों को विकसित करने का। तो मैं आज आपसे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जिससे आप अपने भीतर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं। यू कैन अनलीश लिमिटलेस पावर्स हिडन विद इन यू। पहला उपाय है जो योग कहता है, जो भगवान बुद्ध कहते हैं, जागरूकता, सजगता, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्यों जरूरी है? अध्यात्म के वैज्ञानिकों का, और आज तो मेडिकल साइंस का और साइकोलॉजी का भी कहना है, उनकी शोध है कि हर मनुष्य सोए सोए जीता चला जाता है और बेहोशी का जीवन जीते हुए ही शादी भी कर लेता है, ब्याह भी कर लेता है, मकान भी बना लेता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है, और वही बेहोशी का जीवन जीते जीते रोबोट का जीवन, यांत्रिक जीवन जीते हुए समाप्त हो जाता है। और इस पृथ्वी पर जितने एनलाइटेंड सोल्स, जितने संबुद्ध पुरुष हुए हैं, उन सब के जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाना नहीं रहा है। फंडामेंटली, साइंटिफिकली उन सब का एक ही उद्देश्य रहा है कि तुम जाग जाओ। तुम सोए सोए जीते चले जाते हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, तनाव है, अशांति है और जीवन नरक है। भगवान बुद्ध कहते हैं जितने तुम्हारे जीवन में दुख हैं, उन सब का कारण तुम्हारी बेहोशी है, क्योंकि तुम होश पूर्ण जीवन कभी जीते ही नहीं हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जितने पाप इस पृथ्वी पर होते हैं, अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है, सिर्फ इसलिए होते हैं कि तुम बेहोशी में जीते हो। पश्चिम का संबुद्ध सदगुरु कहता है कि एक व्यक्ति 65-70 वर्ष के जीवन में मुश्किल से 5 मिनट होशपूर्ण होता है। वो भी कब? जब कोई बहुत बड़ा खतरा सामने आ जाता है, तब तुम जाग जाते हो, तब तुम थोड़ा होशपूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हें पहली बार होश का अनुभव होता है। वरना ह्यूमंस हैव बिकम जस्ट ए रोबोट, देयर होल लाइफ इज जस्ट मैकेनिकल, and your whole life can be predicted because you have become machines. ज्योतिषी इसीलिए काम करते हैं, इसीलिए कारगर होते हैं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ मैकेनिकल। अगर तुम होशपूर्ण हो जाओ तो दुनिया का कोई ज्योतिषी तुम्हारा जीवन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन को बड़े बड़े ज्योतिषी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। कोई कहता था चक्रवर्ती सम्राट होंगे, या फिर कहता था कि इतने बड़े जागे हुए संबुद्ध सदगुरु होंगे कि सारी दुनिया। लेकिन जितने लोग उतने तरह से या करके बात करते थे, एग्जैक्ट कोई बात नहीं करता था। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अब प्रश्न उठता है कि ये जागरूकता क्यों जरूरी है? जागरूकता इसलिए जरूरी है कि जो आप अपनी परीक्षाओं के लिए परिश्रम करते हो, उसमें असाधारण सफलता चाहिए। आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपको मेंटल एबिलिटी चाहिए। जो आपके तरीके हैं वे घिसे पीटे तरीके हैं, उनसे ना आपकी इंटेलिजेंस विकसित होती है, ना आपकी मेंटल एबिलिटी विकसित होती है, ना आपकी प्रत्युत्पन्नमति प्रेजेंस ऑफ माइंड विकसित होता है। तो इनको विकसित करने के 3 महत्वपूर्ण उपाय आपसे बताना चाहता हूं, जो गहन हैं और बड़े सहज हैं और बड़े सरलता से तुम्हारे जीवन का अंग बन सकते हैं। पहला उपाय है प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ अवेयरनेस। 24 घंटे के जीवन में
हर पल जागरूक होने का, सजग होने का अभ्यास करें। ये जागरूकता का अभ्यास 3 तलों पर आप कर सकते हैं। पहला तल है शरीर की क्रियाओं के प्रति जागना। भगवान बुद्ध कहते थे, अगर तुम जागना चाहते हो, अपनी अंदर निहित शक्तियों को जगाना चाहते हो, तो शरीर से जो तुम काम करते हो, कोई भी काम बेहोशी में मत करो। अगर तुम राह पर चल रहे हो तो चलते समय होश पूर्ण हो कि ये शरीर चल रहा है। आपकी सारी चेतना, आपका सारा होश चलने पर होना चाहिए। जब तुम एक कप चाय पी रहे हो तो चाय पीते समय आपकी सारी चेतना चाय पीने पर केंद्रित होनी चाहिए, तब चाय का पीना होश पूर्ण होगा। अगर आप चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं इनके बारे में या उनके बारे में, चित्त कहीं और, चाय कहीं और, तब ये बेहोशी की स्थिति है। भगवान बुद्ध बैठे थे और सामने शिष्य बैठे थे, सारे राजकुमार इकट्ठा हुए थे उनकी बैठक में। ये उस समय की स्थिति है जब वो संबुद्ध नहीं हुए थे, एनलाइटेंड नहीं हुए थे। एक मक्खी आई, उनके गाल पर बैठ गई, और मक्खी जैसे ही गाल पर बैठी, उनका हाथ यंत्रवत उठा और गाल पर गया, मक्खी उड़ गई। अब उस मक्खी को उड़ाने में भगवान बुद्ध ने मक्खी होशपूर्वक नहीं उड़ाई थी। वो तो मक्खी बैठे नहीं कि जैसे आपका हाथ यंत्रवत उड़ जाता है, वैसे उनका हाथ यंत्रवत बेहोशी में उड़ गया था। उस समय वे होश की साधना कर रहे थे। तब उन्होंने दोबारा अपना हाथ उठाया होशपूर्वक और गाल पर ले गए और उस मक्खी को उड़ाया जो वहाँ थी ही नहीं। जो राजकुमार उनके सामने शिष्य के रूप में बैठे थे, सारे राजकुमारों ने पूछा, भगवान इसका राज क्या है? मक्खी तो कब की उड़ चुकी थी, आपने दोबारा हाथ ले जाकर मक्खी को उड़ाने का प्रयास क्यों किया? उन्होंने जो बात कही बड़ा अद्भुत संदेश देती है आपके लिए कि मैंने जब पहली बार मक्खी को उड़ाया था तो बेहोशी में मक्खी को उड़ाया था, यंत्रवत, मैकेनिकली। इसलिए अपने को पनिश करने के लिए, अपने को दंडित करने के लिए कि दोबारा ऐसी गलती न हो। जब भी मेरा हाथ उठे तो होश पूर्वक उठे और होश पूर्वक जाए और होश पूर्वक अपना काम करे। इसलिए मैंने दोबारा वहां उस मक्खी को उड़ाया जो ऑलरेडी उड़ चुकी थी। तो उनका संदेश था। आज सारी दुनिया उनके इस संदेश पर रिसर्च कर रही है और माइंडफुलनेस का मूवमेंट सारी पृथ्वी पर चलने लगा। अब उसकी आज से 2500 साल पहले जो विज्ञान भगवान बुद्ध ने अंतर्निहित चेतना को, अंतर्निहित शक्तियों को जगाने का दिया, आज सारा वेस्ट, सारा पश्चिम का विज्ञान, सारे पश्चिम के वैज्ञानिक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम जहाँ से विज्ञान पैदा हुआ उस विज्ञान को इतना बुरी तरह भूल गए हैं कि उसकी याद दिलाने वाले लोग भी नहीं मिलते। इसे तो शिक्षा का अनिवार्य अंग बनना चाहिए कि कैसे हमारे बच्चे माइंडफुल हो सके, सजग हो सके, जागरूक हो सके। यानी सजगता का पहला आयाम है शरीर की समस्त क्रियाओं को करते समय होशपूर्ण रहना। अगर पानी पी रहे हैं तो बेहोशी में पानी ना पिएं। पानी पीते समय सारा होश पानी पीने पर लगाएं। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो जितनी देर भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय भोजन को पूरी तरह चबा चबा कर ऐसे करें कि उसका एक एक कण आपके लिए अमृत हो जाएगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा अन्नयो ब्रह्म, अन्न ही परमात्मा है। और जब आप इस तरह से भोजन करेंगे तो आपकी सारी चेतना उस भोजन के साथ लग जाएगी। और जब चेतना भोजन के साथ लग जाएगी तो आपके भीतर होशपूर्ण
जीवन जीने की कला का विस्फोट होगा। वो शक्ति आपके भीतर की जागेगी होशपूर्ण होने की। और जब होश जागता है तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो मैंने आपसे पहले बिंदु पर ये आग्रह किया कि कम से कम 2-3 क्रियाएं आप अपने लाइफ की चूज कर ले और खेल खेल में होश को साधे। जैसे सवेरे सो के उठ के जो काम आप जरूर करते हैं, चाहे चाय पीते हैं या जूस पीते हैं या पानी पीते हैं, हर आदमी कुछ न कुछ जरूर इन दिनों में से करता है। तो जो भी करे, आप चाय पी रहे हैं सवेरे सो के उठ के, तो उसको ध्यान बना ले। यानी 5 मिनट अगर आप चाय पीते हैं, चाय पीते समय सिर्फ चाय ही पिए, सारी चेतना चाय पीने पर केंद्रित हो जाए। एक काम हर व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ होश को चाय के साथ जोड़ देने की जरूरत है। मैं कोई काम आपको नहीं कहूंगा कि अलग से करना पड़े। जीवन शैली में ही होश को पैदा करो, तुम्हारे भीतर इमेंस इंटेलिजेंस का विस्फोट होगा। वो छोटी छोटी क्रियाएं आपको बता रहा हूं। तो एक पहली क्रिया इसके साथ जोड़ दो। दूसरा, हर विद्यार्थी, हर शिक्षक हर रोज नहाता है। अगर आप 15 मिनट स्नान करते हैं तो एक क्रिया स्नान करने की उसके साथ होश जोड़ दीजिए। जब आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते समय सिर्फ जल की धार और आप, पानी की शीतलता और आप, पानी की गर्म पानी की वार्मथ और आप, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज बचे नहीं। इस तरह आप अगर 15 मिनट नहाएंगे तो आपके नहाने की गुणवत्ता बदल जाएगी। आप पहले से 100 गुना ज्यादा ताजा होकर निकलेंगे और आपको नहाने की ताजगी एक नया जीवन दे देगी। लेकिन अभी आप नहाते रहते हैं तो जाने कहाँ की बातें, किसके बारे में क्या क्या सोचते रहते, कितनी चिंता, कितना तनाव, कितना आक्रोश, सब कुछ उसी समय उबलता रहता है और नहाना एक बाह्य कृत्य बन जाता है। तो एक दूसरा विस्फोटक आपको कृत्य दे रहा हूं, नहाते समय सिर्फ नहाना ही हो जाए, अलग से कुछ समय नहीं निकालना है। और एक तीसरा कृत्य दे रहा हूं, रात में जब आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय सारी चेतना, सारा होश सिर्फ भोजन करने पर केंद्रित करते हैं। अगर आप ये 3 काम शुरू कर देते हैं, होश पूर्वक सारी चेतना को उसी कृत्य में लगा देने का, तो आपके भीतर इंटेलिजेंस का विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। आपका पूरा जीवन जागरूक होना शुरू हो जाएगा। आपको इतना मजा आने लगेगा इन होश पूर्वक कृत्यों को करने का कि जो काम आप अन्य सारे काम भी बेहोशी में करते हैं वो भी होश पूर्वक अपने आप करने लगेगा। शुरू करिए सिर्फ 3 कृत्यों से, फिर आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो पढ़ना आपके लिए आनंद बन जाएगा। अभी पढ़ना आपके लिए बोझ बन जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय चेतना कहीं और होती है। पढ़ते समय चेतना सिर्फ पढ़ने में लग जाए, इसके लिए ये छोटी छोटी 3 क्रियाएं मैंने दी जो भगवान बुद्ध कहते थे कि शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग जाओ, तब तुम्हारे भीतर होश का, विजडम का, इंटेलिजेंस का विस्फोट होगा और पूरी जीवन शैली होश पूर्ण होती जाएगी। तुम रोबोट नहीं रह जाओ। अब तुम्हारी तरह के आदमी तो विज्ञान पैदा कर चुका है, बहुत जल्दी ही आ जाएंगे रोबोट्स जो आपके दफ्तरों में काम करेंगे, आपके रेस्टोरेंट्स में काम करेंगे, सारा काम आपका करेंगे। अब जरूरत है कि आप मनुष्य हो जाए। अभी तो ह्यूमनॉइड्स है, अब आपको जरूरत है मनुष्य के रूप में चेतन अवस्था में जीने की, चैतन्य को, कॉन्शसनेस के साथ जीने की। दूसरा आयाम जागरूकता का आपसे बताना चाहता हूँ। पहला तल है आपके जीवन का शरीर और दूसरा तल है
हर व्यक्ति विचारों के तल पर भी जीता है। और तीसरा तल है भावनाओं का तल। तो शरीर की क्रियाओं के प्रति जागना और फिर दूसरा तल है विचारों के प्रति जागना। हर विद्यार्थी की समस्या है कि 24 घंटे कोई ना कोई विचार आक्रमण किए रहता है। ओवर थिंकिंग इज कंटिन्यूइंग। 1 घंटे पढ़ना चाहता है विद्यार्थी, लेकिन 1000 तरह के विचार उसकी खोपड़ी में घुसते रहते। विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं, और आपको सिखाया जाता है कंट्रोल करो कि करते समय, पढ़ते समय कोई और विचारों में मत उलझो। कंसंट्रेट होकर पढ़ो, ये करो वो करो नहीं। कि जितना ही आप विचारों को रोकेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थियों की जहां जा जाता हूं वो कहते हैं यही समस्या है कि वे विचारों के तूफान 24 घंटा खोपड़ी में हलचल मचाए रहते हैं, इसलिए असामान्य हो जाते हैं। लोग एंजाइटी डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो विचारों के विज्ञान को समझ लेना जरूरी है। आप सिर्फ 24 घंटे में 10 मिनट विचारों के प्रति जागरूकता का अभ्यास करें। सिर्फ 10 मिनट निकाल लें, जो आपकी जिंदगी को नया आयाम, सफलता की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सहायक हो सकता है। उसके लिए 10 मिनट तो आप निकाल सकते हैं। यस सर, नो निकाल सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप आंख बंद करके अपने सोफे पर, चेयर पर, बेड पर कहीं बैठ जाएं, और सिर्फ बंद आंखों से अपने भीतर आने वाले विचारों को देखते रहें कि अब ये विचार आया, अब उसके बाद दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया। एक एक करके सिर्फ विचारों को देखते रहे। विचारों को देखते समय यू हैव टू प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। बिना किसी प्रकार का निर्णय लिए सिर्फ विचारों को साक्षी भाव से देखना है। ये नहीं सोचना कि ये जो विचार आ रहा है अच्छा है कि बुरा है, नैतिक है कि अनैतिक है, शुभ है कि अशुभ है, अच्छा है कि गंदा है, कुछ नहीं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। ऐसे देखो जैसे वह आपसे संबंधित नहीं। वास्तव में हर विचार बाहर से आता है और चला जाता है। हमें लगता है कि हमारे विचार हैं, लेकिन कोई भी विचार हमारा नहीं होता। सारे विचार वास्तव में बाहर से आते हैं और चले जाते हैं। जब आप 10 मिनट ध्यान से देखोगे, आपका मस्तिष्क शैतान का कारखाना है। उसमें 24 घंटे कैसे कैसे विचार आते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर 10 मिनट तुम्हारे चित्त में क्या क्या विचार आ रहे हैं उनको तुम लिख डालो, तो पक्का है कि तुम किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते हो उन्हें, क्योंकि तुम्हें उन्हें दिखाने में शर्म आएगी कि अरे ये भी विचार आया, ऐसा भी विचार आया, वैसा भी विचार आया। कहते हैं कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो 10 मिनट शांति से लिखे और सारे विचारों को ईमानदारी से लिख ले तो उन्हें किसी दूसरे को दिखा सकता है। यानी 24 घंटे तरह तरह के विचार बाहर से आते रहते। तो जब आप 10 मिनट विचारों को देखते रहोगे साक्षी भाव से, विदाउट जजिंग देम, जस्ट ऑब्जर्विंग देम, तो 2 महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। पहला परिणाम होगा, अभी आपको लगता है कि आई एम वन विद द थॉट्स, ये मेरे विचार हैं। यू आर आइडेंटिफाइड विद द थॉट, यू ऑलवेज रिमेन आइडेंटिफाइड विद द थॉट। लेकिन जब आप 10 मिनट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप अलग हैं, विचार अलग हैं। स्टेट ऑफ सेपरेटनेस फ्रॉम द थॉट्स, विचारों से पृथक होने का, विचारों से अलग होने का अनुभव होगा आपका कि विचार तो सिर्फ मेहमान की तरह हैं, बाहर से आते हैं और चले जाते हैं। यानी ये जो पृथकता का बोध होगा, तब आप जो भी विचार आज आपके जीवन में उपद्रव का कारण बनते हैं वो आपके जीवन में उपद्रव का कारण बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको
बोध हो जाएगा भीतर से कि वे अलग है, मैं अलग हूँ। एक परिणाम ये होगा विचारों से पृथक होने का, अलग होने का, नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड विद द थॉट्स। ये पहला परिणाम होगा। दूसरा परिणाम क्या होगा? जब आप विचारों को 10 मिनट तक देखते रहोगे तो दूसरा परिणाम होगा, आपको पहली बार पता चलेगा कि विचारों की चेन नहीं है। एक विचार से दूसरे विचार के बीच में बहुत छोटा छोटा अंतराल, इंटरवल, गैप आपको अनुभव होने लगेगा। अभी तो आपको लगता है कि सारे विचार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक गया नहीं कि दूसरा उसके पहले ही आ जाता है। लेकिन ऐसी कोई चेन नहीं होती। जब आप गौर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे थॉट्स को, तो आपको पता चलेगा कि एक विचार से दूसरे विचार के बीच में थोड़ा गैप है। और जब ये कम से कम 21 दिन आप साथ लेंगे तो आप पाएंगे कि एक विचार से दूसरे विचार के बीच में ये इंटरवल, ये गैप बढ़ने लगा है। जब दो विचारों के बीच में जो इंटरवल होता है, उस समय आपकी चेतना के सामने क्या होता है? उस इंटरवल में चेतना के सामने कुछ नहीं होता, यानी आपकी चेतना स्वयं में स्थित हो जाती है। उसी अंतराल में आपको अपनी आत्मा का पहली बार स्वाद मिलता है, अनुभव मिलता है, और एक अद्भुत आनंद की झलक उस अंतराल में आपको मिलेगी, हर एक को मिलेगी। उसमें आपको आपकी आत्मा का स्वाद, आत्मा की झलक मिलती है, जिसको कहते हैं स्वयं में स्थित हो जाती है आपकी चेतना। और जब ये अनुभव होता है, ये जितना ही आपका अंतराल अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही ये अंतराल गहराता चला जाता है। और जब आपकी यही एक साधना आपकी सिद्ध हो जाए कि आप 5 मिनट 10 मिनट निर्विचारता की अवस्था में, यानी ये अंतराल आपका 5 मिनट 10 मिनट को हो जाए, तो आप एनलाइटनमेंट की ओर अग्रसर होने लगते हैं। आपके भीतर इंटेलिजेंस का विराट विस्फोट होने लगता है। जब आपकी चेतना स्वयं में स्थित होने लगती है, तब विराट इंटेलिजेंस जो अस्तित्व की है, प्रकृति की है, उस इंटेलिजेंस से आपका तार जोड़ने लगता है। जैसे आप में से तमाम लोगों को अनुभव है, मेरे पास आते हैं, आप आँख बंद करके बैठ जाते हैं, मैं आपके जीवन को ऐसे लिख देता हूँ जैसे कि मैं जी रहा हूँ उनको। वो तभी संभव है जब इस अस्तित्व की चेतना के साथ एक होने का अनुभव, एक होने की कला आपको आ जाए। और उसका मैंने सरलतम अनुभव किया हुआ उपाय आपसे बता रहा हूं। तो दूसरी साधना मैंने बताई विचारों के तल पर। प्रैक्टिस 10 minutes the process of observation of your thoughts without judgment। आप इसको कह सकते हैं मेडिटेशन फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स। तो विचारों का अवलोकन करना, ऑब्जर्विंग योर थॉट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स। ये 10 मिनट की प्रक्रिया आप करें तो आपके भीतर इंटेलिजेंस का विस्फोट होगा। ये दूसरी प्रक्रिया मैंने बताई। अब तीसरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। तीसरा तल आपके जीवन का क्या है? एक तल तो आप शरीर के तल पे जीते हैं, दूसरा आप विचारों के तल पे जीते हैं, और एक तीसरा तल भी है, वो है भावनाओं का तल। आप भावनाओं में जीते हैं। ये भावनाएं क्या हैं? प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव, करुणा का भाव, लोभ का भाव, इमोशंस है। आप सोचते नहीं हैं, कामुकता है। आप सोचते नहीं, ये भावनाएं आपको दबोच लेती हैं और आप इनके गुलाम बन जाते हैं। जैसे क्रोध आप करना नहीं चाहते, लेकिन दबोच लेता है। ये पावरफुल एनर्जी है जो हर व्यक्ति को दबोच लेती है। आप पर उनका कोई अधिकार नहीं। सेक्स आपको दबोच लेता है, कामुकता का भाव आपको दबोच लेता है, आपका कोई अधिकार नहीं। ऐसे
किसी के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। एक भाव है जो दबोच लेता है। आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं प्रेम करने की, वो दबोच लेता है। तो ये जो भाव की ऊर्जाएं आपके भीतर हैं, आप इनके गुलाम बनते हैं, इनके शिकार होते हैं और ये आपके जीवन में तरह तरह के नरक पैदा करती है। मैं आपको इन भावनात्मक शक्तियों का स्वामी बना सकता हूँ, मालिक। जो इनका मालिक बन जाता है उसी को हमने स्वामी की संज्ञा दी। लेकिन लोग वास्तव में मालिक नहीं, सिर्फ टाइटल लगा देते हैं। तो वास्तव में इन भावनाओं के प्रति अगर आप जागरूकता का अभ्यास करें तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से, अलग से कुछ नहीं करना है। कौन ऐसा है जिसको क्रोध नहीं पकड़ता? जब क्रोध है तो सिर्फ मेरी शक्ल याद कर लो, सिर्फ मेरी शक्ल याद कर लो, आपको पक्का पता लग जाएगा कि क्रोध ने आपको पकड़ लिया है। और जब आपको होश रहे तो भगवान बुद्ध कहते थे, भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा, बड़े बड़े साधुओं ने पूछा कि सिर्फ आप क्रोध से मुक्ति पाने का उपाय बता दो। उन्होंने जो उपाय बताया था, ध्यान से सुनो, ये आपकी जिंदगी में चमत्कार पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा जब क्रोध है तो सिर्फ 3 बार आपको मन ही मन बोलना है, एंगर एंगर एंगर। अगर आप मन ही मन 3 बार बोलोगे एंगर एंगर एंगर, तो इतनी देर में आप इस होश से भर जाओगे कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है। और जब तुम होश पूर्ण हो जाओगे क्रोध के प्रति, तब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जब जब क्रोध ने मुझे पकड़ा है मुझे पछताना पड़ा है। क्योंकि क्रोध आग का एक ऐसा अंगार है जिसे आप हाथ से उठाते हैं किसी दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन उसके पहले आपका ही हाथ जल जाता है। तो इतनी ये भाव आपके भीतर जग जाएगा कि इस बार भी अब क्रोध मुझे पकड़ रहा है। यानी सिर्फ इतना एंगर 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 कहते कहते आप क्रोध के प्रति होश पूर्ण हो जाएंगे। और जब क्रोध के प्रति होश पूर्ण हो जाएंगे तो क्रोध अपने आप विसर्जित होता चला जाएगा और थोड़ी ही देर में पाएंगे कि क्रोध विसर्जित हो गया। ये विज्ञान आपको बता रहा हूँ। अभी होता क्या है कि क्रोध में आपको होश नहीं, आपका होश गायब हो जाता है और क्रोध आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपसे बहुत कुछ करा लेता है। एक व्यक्ति मेरे पास आता है, गुरुदेव आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मैं अपनी माँ को देवी की तरह पूजता हूँ, वो मेरी जिंदगी की सब कुछ है, भगवान और देवी देवताओं से भी ज्यादा उसे मानता हूँ, लेकिन आज ऐसा क्रोध आया कि मैंने माँ पर हाथ उठा लिया। माँ पर हाथ उठ जाने का इतना ही अर्थ है कि जब क्रोध आया तो होश चला गया, होश नहीं रहा। और जब आपको भी जब क्रोध आता है तो होश नहीं रहता है। अगर 3 बार एंगर 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 कहोगे तो आप होश पूर्ण हो जाओगे क्रोध की भावना के प्रति, क्रोध के भाव के प्रति। ऐसे ये भावनाएं जब भी आपको पकड़े, थोड़ा उनके प्रति होश पूर्ण हो जाओ तो ये भावनाएं विसर्जित हो जाएंगी और धीरे धीरे आप पाओगे कि अगर क्रोध पर आपका नियंत्रण स्थापित हो गया तो अन्य भावनाओं पर भी धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होता चला जाएगा। ये थोड़े थोड़े अभ्यास से ही सिद्ध होता। असंभव से आपको लग रहा होगा कठिन है काम, लेकिन यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन बार बार कहते हैं, प्रभु आपने मुझे ये मार्ग बताया, मेरी समझ में आ गया, दूसरा मार्ग बताया, ये भी मेरी समझ में आ गया, तीसरा मार्ग बताया, ये भी मेरी समझ में आ गया, लेकिन ये तीनों में कैसे कर पाऊंगा? मुझे लगता है कि इसे कर पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। अब इसका उपाय बताइए।
इस कठिन अभ्यास को मैं कैसे सिद्ध करूंगा? वो जो तीनों योग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे, ज्ञान योग, कर्म और भक्ति योग, तो थोड़ा कठिन भी थे। ये जो मैं योग आपको बता रहा हूँ ये तो कई गुना उससे आसान है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन कठिन से कठिन योगों को भी करने का, अर्जुन मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली उपाय बताता हूँ, अभ्यासेन तु कौन्तेय। केवल इन 3 शब्दों में कहा कि अर्जुन तू थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर, लेकिन रोज रोज कर, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, पानी की क्या मजाल कि पत्थर को तोड़ दे, लेकिन झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। कैसे? निरंतर झरता हुआ। थोड़ा निरंतर इन तीनों क्रियाओं का अभ्यास करते रहे आप, तो आपके भीतर ऊर्जा का विस्फोट होगा, आपके भीतर इंटेलिजेंस पैदा होगी, आपकी कॉन्शसनेस का एक्सपेंशन होगा, आपकी चेतना विकसित होगी। और जब चेतना विकसित होती है, आपका होश बढ़ता है, तो आपके जीवन में आनंद की तरंग पैदा होती है, आपके ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। और मन का कहना है एनर्जी इज डिलाइट, ऊर्जा ही आनंद बनती है। और जब आनंद बनेगी तो आप में रसधार पैदा होगी, आपका जीवन बनेगा। तो एक उपाय मैंने बताया फॉर अनलीशिंग योर लिमिटलेस पोटेंशियल, दैट इज प्रैक्टिस अवेयरनेस एट द लेवल ऑफ योर बॉडी, लेवल ऑफ योर होप दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? मैंने कहा था 3 उपाय बताऊंगा, अब दूसरा उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय प्रैक्टिस अवेयरनेस, दूसरा उपाय है प्रैक्टिस। 5 मिनट में इस बारे में सब वास्तव में अर्थ क्या। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यानम निर्विशो मनः, यानी जब आपके चेतना के समक्ष कोई विषय यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब जो स्थिति होती है वो ध्यान की स्थिति होती है। अभी आप सुन लो, मैं अभी आपसे एक प्रश्न भी पूछूं, सर तभी आप दे पाओगे जब इस बात को समझ। यानी जब आप चेतना यानी आपके होश, आप होश में तो हैं, लेकिन उसके समक्ष कोई विषय नहीं। इन अदर वर्ड्स, इट इज स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। ना तो है, कंटेंट नहीं, उस अवस्था में होना। और मैं आपसे कहूं, आप की आपका आपकी चेतना 2 ही अवस्था में होती है। एक, या तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट में, या तो आप कुछ पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट, या आप किसी बात कर रहे हैं तो बात करने में उलझिए, या आप फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखने में उलझिए। किसी न किसी काम में आपकी चेतना उलझी है, आप ऑक्युपाइड हैं। जिस चीज में आप ऑक्युपाइड हैं, उस समय आपकी चेतना उस काम में, ऑब्जेक्ट, योर कॉन्शियसनेस हैज बिकम बाउंड विद दैट ऑब्जेक्ट। जब कॉन्शियसनेस सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तब आप कहते हो बोर हो रहे हैं। और जब बोर हो रहे होते हैं तो क्या, नो ओनली टू, वन, आइदर यू आर ऑक्युपाइड और यू आर अनकॉन्शियस।
या तो किसी विचार में उलझे रहते हो, वो विचार भी ऑक्यूपेशन, या तो तुम किसी विचार में उलझे हो या किसी काम में उलझे हो, और जब इनमें नहीं है तो आप थक जाते। आपको अनऑक्यूपाइड कॉन्शियस, कंटेंटलेस कॉन्शियस, यानी होश है और के सामने कोई विषय नहीं, इसका अनुभव ही नहीं है। तो ये इस अनुभव को प्राप्त कर लेना ध्यान है। जब ये कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, उस मेडिटेटिव स्टेट में आपकी इंटेलिजेंस ग्रोज बाय मैनी टाइम्स। आप चाहे शिक्षक हो, चाहे 14 साल तक हमारी इंटेलिजेंस विकसित होती है, 14 साल के बाद हमारी इंटेलिजेंस क्योंकि प्रकृति का काम पूरा हो गया। 14 साल 13-14 साल का होते होते काम है कि आपको रिप्रोडक्टिव रिक्रिएट करने के लिए सक्षम बना। 14 साल का जो है प्रकृति का काम पूरा हो जाता है, अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो जाते। इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम प्रकृति रोक देती है। अब अगर इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को पैदा करना है अपने भी, तो आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रकृति आपको सहयोग नहीं देती, इसलिए अब विज्ञान कह रहा है कि अब मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार स्वयं करेगा, तभी विकसित होगा। आप मछली से लेके कीड़े मकोड़े से लेके और जीव जंतु और पेड़ पौधों से होते हुए अब मनुष्य आए हैं, और मनुष्य के बाद जो अगला विकास है अब प्रकृति नहीं करेगी, अब आपको अपनी चेतना का विकास करे। अब तक का विकास वाज हॉरिजॉन्टल, अब विकास वर्टिकल होगा। अब हवाई जहाज हॉरिजॉन्टली दौड़ता रहेगा, अब वो स्टेज खत्म हो गई, अब उसको ऊपर की तरफ उड़ना पड़ेगा, जमीन छोड़नी पड़ेगी, और वो विकास अब प्रकृति नहीं करेगी। अब अध्यात्म के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि वो विकास आपको करना पड़ेगा, और उसका रास्ता है प्रैक्टिसिंग बीइंग इन स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। ध्यान ही एक मात्र उपाय है, और आप 24 घंटे के जीवन में हमेशा कंसंट्रेशन की स्थिति में रहते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी चेतना सिकुड़कर एक बिंदु पर आ जाती। कंसंट्रेशन मीन्स नैरोइंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। और तो जब आप कॉन्शियसनेस को नैरो कर देते हैं किसी एक विषय में, तो मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रेन, मेजर पार्ट ऑफ योर माइंड बिकम्स अनकॉन्शियस। तो ध्यान क्या है? एक छोटा सा हिस्सा आपका कंसंट्रेटेड है, वो सक्रिय है। शेष 95% ब्रेन, वो आपका माइंड आपका अनकॉन्शियस है। उस अनकॉन्शियस माइंड को में छलांग लगा देना, उस अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाना, इसे कहते हैं ध्यान, ताकि वो भी कॉन्शियस हो जाए और आदमी इस अवस्था को उपलब्ध हो। इसके लिए ध्यान की भगवान शिव ने 112 विधियां मनुष्यता को दी है, जिसमें से एक विधि संजीवनी क्रिया जो 21वीं सदी के मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, वो मैं आप सबको उपलब्ध कराता हूँ। वो डिजाइन योर डेस्टिनी नामक एक कोर्स है 3.5 घंटे का, उसे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली उपलब्ध है। आप सबको उसका लिंक इस बार पुनः दे दिया जाएगा। आप वो 3.5 घंटे के कोर्स को देख लें, जिससे यू कैन डिजाइन योर डेस्टिनी। वो साइंस, वो विज्ञान उसमें मैंने उपलब्ध कराया है, जिससे आप अपना भविष्य खुद निर्मित कर सकते हैं। कोई सातवें आसमान पर बैठा परमात्मा तुम्हारा जीवन नहीं निर्मित कर रहा है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. You can design it, you can create it, and the science is available in that
3.5 hours ऑफ कोर्स। तो आप उसको देख रहे हैं, वहां पर ध्यान की क्रिया का भी आपको अभिज्ञान हो जाएगा। आप enough for meditation, the second device. The third device is festivity and playfulness. यानी तीसरा राज आपको बताना चाहता हूं इंटेलिजेंस को विकसित करने का। जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी इंटेलिजेंस उतना अधिक तेजी से बढ़ती हुई चली जाती है और वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर मनचाही चीजों को पाने में सक्षम होता चला जाता है। तुम 24 घंटे कितना अधिक आनंदित हो, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, ये तुम्हें सीखना होगा। इस विज्ञान को मैंने पूरे प्राणों से आपके लिए निर्मित किया है, अपने जीवन के पूरे अनुभव उसमें डाल दिए हैं। और अध्यात्म का विज्ञान अब तक जो भी इस पृथ्वी पर महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद ने दिया है उसका सार इस पूरे डिजाइन योर डेस्टिनी कोर्स में समाहित है। तो आप हर पल आनंदित रहने के विज्ञान को भी उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब आप खेल पूर्ण होते हैं तो आपकी चेतना एक्सपैंड कर जाती है चारों तरफ, तब किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, तब चेतना आप चारों तरफ जागरूक हो जाती है। जब आप उत्सव महोत्सव के भाव में होते, महोत्सव मना रहे होते हैं, तो चेतना संकुचित नहीं होती, चेतना विस्तृत हो जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में जो विज्ञान देते हैं मनुष्य को, वो उत्सव पूर्ण जीवन जीने का विज्ञान, रास लीला भी करते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर दिन होली और हर रात दिवाली में बदल जाए। और इसीलिए वो जीवन को ही पूरा लीला यानी खेल का रूप देने की चेष्टा देते हैं। एक विज्ञान, एक संदेश देते हैं कि पूरा जीवन ही खेल बन जाए और तुम्हारा पूरा जीवन युद्ध बन गया है। तुम खेल को भी युद्ध बना लेते हो। अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो, दोनों देश के लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे दो देश की सेनाएं बैठ गई है युद्ध मैच देखने के लिए। यानी जब आपकी चेतना रिजल्ट पर केंद्रित हो जाती है तब संकीर्ण हो जाती है, और जब खेल में संलग्न हो जाती है तब विस्तीर्ण हो जाती है। कैसे तुम्हारी चेतना उत्सवपूर्ण हो जाए, कैसे तुम्हारे जीवन का हर दिन होली और हर रात दिवाली में बदल जाए, ये विज्ञान भी मैंने आपको उपलब्ध कराया 3.5 घंटे के कोर्स में। तो आज इतना ही फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, दिस इज द मैसेज फॉर यू, so that you can be able to unleash the limitless powers hidden within you. Enough for now. Thank you so much. Thank you, Guruji. Words of wisdom from such experienced people like you are always cherished and honored. Now, the question answer session open to the students. Students can ask the questions, and I request Guruji to kindly give a ray of light to the sprouting questions in the minds of our budding young youth. Okay, thank you. Jai Shri Ram Guruji. Myself Shivam Tomar. I study in B Form, first year. मेरा क्वेश्चन है कि हमारे मन और आत्मा कैसे जुड़ी हुई है।
ओके, और थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्वेश्चन? सर जैसे कि मन हमारा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और अंदर अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि एक पॉजिटिव आवाज़ आती है, लेकिन मन फिर उस रेस में मन फिर भी जीत जाता है। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू। आई नाउ आई कम टू योर क्वेश्चन। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मन क्या है, आत्मा क्या है। अधिकांश लोग सिर्फ शब्दों में जानते हैं मन, और शब्दों से ही जानते हैं आत्मा। आत्मा भी कोई एक कल्पना है, बता दी गई है कि आपके भीतर एक आत्मा है। और कुछ लोग तो कहते हैं, मार्क्स तो कहता था आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं। ये आत्मा तुम्हारी सिर्फ मान्यता है, तुम्हारा अनुभव नहीं। यस और नो? और मन क्या है? व्हाट इज मन? मन आपके शरीर की कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है। जैसे वृक्षों के समूह को कहते हैं वन, वैसे विचारों के समूह को कहते हैं मन। यस, ये विचार 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 विचार, तरह तरह के विचार, 24 घंटे विचार ही विचार जो चलते रहते हैं आपके भीतर। आपको लगता है कोई मन है मेरे भीतर, वो ये विचार दे रहा है। These are your thoughts which are coming from the outside. तो जैसा मैंने कहा, आपके जीवन के 4 तल हैं। एक तल है शरीर का तल, वो आपको पता है। दूसरा तल है विचारों का तल, वो भी आपको पता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कोई विचार आपका अपना नहीं होता। सब विचार उधार है, सब विचार बाहर के हैं, सब विचार दूसरों के। कोई विचार आप पर, सब बाहर से आते हैं और चले जाते हैं। ये तो हो गया, ये विचारों के समूह को कहते हैं मन। ये जान लो कि मन हो गया। और तीसरा तल क्या है? तीसरा तल है, मैंने कहा, भावनाओं का। भावनाएं आपके भीतर उठती हैं, जाती हैं, नई नई भावनाएं उठती हैं। कभी ऐसा भाव होता है, कभी वैसा, कभी मैत्री का भाव उठता है, कभी शत्रुता का भाव उठता है, कभी प्रेम का भाव उठता है, कभी ईर्ष्या का भाव उठता है। तो तीसरा तल भाव का हम जीते हैं। और इन तीनों के से भी गहरा एक तल है जिसको हम कहते हैं, कहां से इन सबको ऊर्जा मिलती है, जिसको हम कहते हैं चेतना, कॉन्शसनेस। हमारे शरीर में कॉन्शसनेस है ना, ये जो कॉन्शसनेस है उसी को हमने कहा आत्मा, उसी को हमने कहा बीइंग, उसी को हमने कहा अपना होना, उसी को हमने कहा व्यक्ति का अस्तित्व। तो जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी चेतना है, जो आपकी आत्मा है, तो ये सबसे गहरा तल है। आपकी समस्या वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन की समस्या है। आपको विचारों का तो बोध है। विचार मीन्स माइंड, माइंड मीन्स मन। तो माइंड को तो आप, ये माइंड ही आपके हर तरह के खेल खेलता है। आत्मा का आपको कोई बोध नहीं। आत्मा के तल पे जीने का, पहुंचने का, जाने का, होने का अनुभव कभी नहीं हुआ आपको। और सारा अध्यात्म और सारी प्रक्रियाएं जो मैंने तीनों कही, जो व्यक्ति जितना ही अपने आत्मा के निकट पहुंचता है उतना ही अधिक इंटेलिजेंट होता है। क्योंकि जो अपनी कॉन्शसनेस है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो अस्तित्व से जुड़ी हुई है कॉन्शसनेस आपकी, यत यत ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे, जो आपके भीतर वो चेतना स्वरूप, वो सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं सूक्ष्म प्रकाश के रूप में, वो विद्यमान है आपके भीतर। तो वो, उससे आपका तार जुड़ता है। जितना जो व्यक्ति अपनी आत्मा के जितना अधिक निकट होता है, उतना ही अधिक बुद्धिमत्ता होती है उसके भीतर,
वो उतना ही अधिक आनंद होता है उसके भीतर, उतना ही अधिक उसका जीवन उच्चता की, श्रेष्ठता की ऊंचाइयों पर पहुंचता चला जाता है। तो कैसे हम आत्मा के निकटतम पहुंचे, उसी की 3 विधियां मैंने बताई। जागरूकता का अभ्यास करो, शरीर के तल पर जागरूकता का अभ्यास करो, विचारों के तल पर जागरूकता का अभ्यास करो, भावनाओं के तल पर, एक विधि। दूसरी विधि मैंने बताई ध्यान का अभ्यास करो, जिसके लिए मैंने संजीवनी क्रिया 20 मिनट की क्रिया आपको दी। तीसरा है 24 घंटे की जिंदगी में उत्सवपूर्ण रहो, प्लेफुल रहो, खेलपूर्ण रहो। उत्सवपूर्ण जीवन, खेलपूर्ण जीवन, जो भगवान कृष्ण का गीता के माध्यम से पूरा संदेश है कि महाभारत जैसे महायुद्ध को भी खेल बना लो, युद्ध न रह जाए, खेल बन जाए। तो ये विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है। और ये 3 मैंने महत्वपूर्ण कुंजियां दी, इन कुंजियों का प्रयोग करो, इनसे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम क्यूटी है, मैं बी फार्म से फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरे 2 प्रश्न थे जी। पहला तो ये कि आपके आइडल कौन है, कि मतलब आप किसको फॉलो करते हैं, किसको मानते हैं आप? ओके, ब्यूटीफुल। पहले इसका उत्तर देता हूँ, फिर दूसरा प्रश्न लेता हूँ। थैंक यू। प्लीज क्यूटी, no doubt your question is very cute. And no doubt as cute as you are. But one thing more, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जहां से अपनी बात शुरू की थी, मैंने कहा था, भगवान बुद्ध के वचन से मैंने अपनी बात शुरू की थी, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, बी लाइट अनटू योर सेल्फ। मैं हृदय से कहता हूं आपको, अपने सदगुरु को भी साक्षी मानकर कहता हूं, आई हैव नेवर फॉलोड एनीवन, नॉट इवन माई गुरु। अब ये बात आपको बड़ी विरोधाभासी लगती हो, क्योंकि मेरे गुरु में और मेरे में बहुत विरोधाभास है। और मैंने एक दिन अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मेरी अप्रोच में आपकी अप्रोच में बहुत अंतर है, फिर भी मुझे आप इतना प्यार क्यों करते? उन्होंने जो बात कही थी उसने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, अस्तित्व ने, परमात्मा ने तुम्हें स्वामी सुदर्शनाचार्य बनाकर नहीं भेजा है, वो मेरे गुरु थे। अस्तित्व ने, परमात्मा ने तुम्हें स्वामी सुदर्शनाचार्य बनाना नहीं चाहे, तुम साक्षी राम कृपाल जी हो। और इस अस्तित्व में परमात्मा की विजडम इतनी अनंत है, इतनी विराट है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सके हैं और न कभी होंगे। इसलिए जूही का फूल अगर कमल का फूल होना चाहे तो कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो स्वामी साक्षी राम कृपाल जी, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी कभी नहीं हो सकते हैं जिंदगी में। और जूही का फूल अगर कमल का फूल बनने की चेष्टा करेगा तो पहली सबसे बड़ी दुर्घटना ये होगी
कि वो कमल का फूल कभी नहीं बन पाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण दुर्घटना ये होगी कि कमल का फूल बनने की चेष्टा में उसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और वो खिला हुआ जूही का फूल भी नहीं बन पाएगा। दूसरी दुर्घटना ये होगी कि खिला हुआ जूही का फूल भी नहीं बन पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था तुम खिले हुए साक्षी राम कृपाल जी बनने की दिशा में सक्रिय हो जाओ, तुम्हें स्वामी सुदर्शनाचार्य जी नहीं बनना है। वही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपदीपो भो, अपने विवेक को जगाओ और अपने विवेक को जगाने के बाद अपने विवेक से जीवन को जीना शुरू करो। नेवर फॉलो एनीवन, नेवर इमिटेट एनीवन। विवेक से जियो, यही तुम्हारे मनुष्य होने की महिमा है, यही तुम्हारे मनुष्य होने की गरिमा है। तुम किसी की कार्बन कॉपी नहीं बन सकते हो और न तुम्हें किसी की कार्बन कॉपी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने को पूर्णता से खिलने की दिशा में सक्रिय कर दो। और क्यूटी, तू खिली हुई क्यूटी बन जाए, यही तेरे जीवन का लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न। सर, दूसरा प्रश्न ये था कि लिविंग लाइफ इज आर्ट और मैनेजमेंट ऑफ समथिंग दैट वी डू नॉट नो। मतलब जीवन जीना एक कला है या फिर एक मतलब प्रबंध है जो हमें नहीं पता। ओके, जीवन जीना कला है या जीवन जीना विज्ञान है या जीवन जीना मैनेजमेंट है, इसकी परवाह क्यों करनी। जीवन को खिले हुए आनंद से जी लो, उसमें कला भी आ जाएगा, उसमें मैनेजमेंट भी आ जाएगा, उसमें साइंस भी आ जाएगा। और तुम खोजोगे कि इसमें कला क्या है, इसमें विज्ञान क्या है, इसमें मैनेजमेंट क्या है, तो हो सकता है कुछ मैनेजमेंट हाथ लग जाए, कुछ कला हाथ लग जाए, कुछ साइंस हाथ लग जाए, लेकिन जीवन को हाथ लगने से चूक जाओगे। इसलिए जीवन को जियो पूर्णता से खिले हुए, और जीवन का रस और जीवन का रास, इसे अपने भीतर पैदा करने का विज्ञान, वही मैंने आपको दिया है 3 सूत्रों के हिसाब से। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने आपका अपना पूरा भविष्य आगे जीने को पड़ा है। पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, ये पूरा जीवन आपको स्वयं निर्मित करना है। आप ही इसके निर्मित करने वाले हो। सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई परमात्मा तुम्हारा जीवन निर्मित नहीं कर रहा है, न करेगा कभी। भगवान बुद्ध कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक। मनुष्य जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा बनता चला जाता है। आपका आज का जीवन वही है जो आप कल सोचा था, और आपका कल का जीवन वही होगा जैसा जैसा आप आज सोचते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, इसी से आपका भविष्य निर्मित होगा। तो हमने डिजाइन योर डेस्टिनी के माध्यम से 3 महासूत्र दिए हैं आपको। पहला महासूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए, यानी आपके विचारों में बड़ी शक्ति, और विचार ही आपका जीवन सृजन करते हैं। और विचार शक्ति के विज्ञान का पहला सूत्र है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। जिन चीजों को जिंदगी में पाना चाहते हो, अपना विचार उन्हीं पर केंद्रित करो, उन पर नहीं जिन्हें तुम पाना नहीं चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि तुमने अधिकांश लोगों को वही चीजें मिलती है जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि निरंतर उसी बात की चिंता करते रहते हैं, उसी बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं मैं जो बनना चाहता हूं वो न बन पाऊं। जो व्यक्ति हमेशा ही सोचता रहता है कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ दुनिया की कोई ताकत उसका एक्सीडेंट नहीं रोक सकती। इसलिए फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। तुम्हारी दिशा हमेशा गड़बड़ रहती है, तुम हमेशा चिंता में रहते हो। क्यों चिंता में रहते हो? बिकॉज योर फोकस इज ऑन द रॉन्ग पॉइंट। सो चेंज योर फोकस एंड योर लाइफ विल चेंज। और दूसरी बड़ी बात कहना चाहता हूं आपसे, थिंक बिग ड्रीम बिग। जो व्यक्ति बड़ा बड़ा सोचता है, बड़े बड़े सपने देखता है, तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। जब तुम्हारा साध्य बड़ा होगा, संकल्प बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा साध्य, जितना बड़ा होगा संकल्प, उतना गहरे में जाकर तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों का विस्फोट होता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि अपनी जान बचाने के लिए मरियल सा आदमी भागता है, क्योंकि उसे पक्का पता चल गया है कि सामने वाला आदमी अपना तेज धार वाला चूरा उसकी छाती में भोंक देने वाला है। मरियल सा आदमी भागता है, और आपको पता है जान बचाने के लिए जब भागता है तो उसकी प्रति सेकंड भागने की स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की प्रति सेकंड स्पीड से ज्यादा तेज हो जाती है। ये शक्ति कहां से आई उसके भीतर? आसमान से नहीं, शक्ति तो उसके भीतर छिपी थी, सिर्फ जागी नहीं थी। जागी कब? जब बड़ा संकल्प आया, बड़ी चुनौती आई। तो जब तुम अपनी जिंदगी में बड़े संकल्प लेते हो, बड़ा लक्ष्य रखते हो, बड़ी चुनौती रखते हो, तो और तुम्हारा फोकस उस पर बना रहता है, तो तुम्हारे भीतर जो अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं उनको मजबूरन जागना पड़ता है। इसलिए विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि थिंक बिग ड्रीम बिग, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनंत शक्तियां जागे और तुम्हें उस मंजिल पर पहुंचा दे। तो वो उसमें चाहे आर्ट है, चाहे साइंस है, चाहे मैनेजमेंट है, इसकी चिंता ना करो। तुम जीवन को पूर्णता से जीने की चेष्टा करो, और जब तुम जीवन को पूर्णता से जियोगी तब आर्ट भी उसमें आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगी, मैनेजमेंट भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच, एनफ फॉर दिस वन। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम गंगाराम यादव है और मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बताया कि 24 घंटे होश को साधें, तो 6 घंटे जो होते हैं हम पूर्ण बेहोशी में जीते हैं वो, तो उन 6 घंटों को मिला के हम पूरा 24 घंटा होश में कैसे निकालें? वो क्या प्रक्रिया रहेगी कि हम उस सोते हुए समय को भी यूटिलाइज कर सकें? Okay, beautiful. I'm really feeling very happy. Very intelligent question. अगर ये क्वेश्चन ना आया होता तो मैं समझता कि इस सभा में कोई लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन वास्तव में वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आर कमिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू द होल ऑडियंस प्रेजेंट ओवर हियर। एंड आपने पूछा है कि ये जो हम नींद के घंटे होते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इनमें में तो हम बेहोशी में ही सोते हैं, मूर्छा में सोते हैं, अनकॉन्शियस अवस्था में सोते हैं। और मैंने कहा है कि 24 घंटे होश को बनाए रखो, तो ये कैसे संभव है? फिर बच्चे ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरा प्रश्न है कि आखिर हम उन नींद के घंटों को कैसे होशपूर्ण बनाएं? तो मैं आपको सबसे बड़े राज की बात बताना चाहता हूं। वही जो भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन, जब सामान्य लोग दुनिया में सोते रहते हैं, योगी जन तब भी जागते रहते हैं। योगी जन तब भी जागते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शरीर तो सोता है,
और शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए शरीर को विश्राम पूर्ण होना और शरीर का नींद में होना जरूरी है। लेकिन तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, सूक्ष्म प्रकाश के रूप में जो तुम्हारे शरीर के भीतर सूक्ष्म प्रकाश बिंदु जो तुम्हारी चेतना है या जिसे को आत्मा है, वो आत्मा कभी नहीं सोती है। उसका नाम ही है चेतना, यानी जो 24/7 जागी हुई रहती है। लेकिन तुम अपने शरीर के साथ शरीर सोता है, माइंड यानी मन सोता है, आपका पूरा संयंत्र सो जाता है, माइंड, ब्रेन, बॉडी ये सब सो जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म प्रकाश बिंदु चेतना का है वो सो जाए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए सो गए, फिर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। वो चेतना, वो आत्मा, वो जागी हुई है और तुम उसके साथ सो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है अपने को, अपने थॉट्स, माइंड के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है और तुमने इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है। जब मैंने कहा कि तुम अपने शरीर के साथ तादाद में तोड़ो, यानी उसके प्रति जागरूक हो जाओ, जब मैंने कहा विचारों के प्रति जागरूक हो जाओ, तब आपको पता चलेगा कि जब तुम जागरूक होने की साधना करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये शरीर चल रहा है, मैं इसे चलता हुआ देख रहा हूं। यानी तुम अलग, शरीर अलग। जब विचारों के प्रति जागरूकता साधोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये विचार चल रहे हैं और मैं इन विचारों को देख रहा हूं, मैं अलग, विचार अलग। तो पहले अनुभव में तुम शरीर से अलग हो गए, दूसरे अनुभव में तुम स्वयं को विचारों से अलग जान लेते हो। अभी नहीं जान सकते हो, अभ्यास करोगे तब जान लोगे कि विचारों से अलग हो, मन से अलग हो, माइंड से अलग हो। और फिर जान जाओगे तीसरे तल पर कि भावनाओं से भी अलग हो। ये क्रोध आता है, चला जाता है, मैं क्रोध को देखता रहता हूँ, एंगर एंगर एंगर, देखा और क्या। ऐसे प्रेम आएगा और तुम प्रेम को भी देखोगे, घृणा आएगी, घृणा को भी देखोगे, ईर्ष्या आएगी, ईर्ष्या को भी देखोगे, पृथक बने रहोगे। तो धीरे धीरे जब इन तीन तलों पर तुम्हारा तादाद में टूटेगा, इनसे अलगाव अनुभव करोगे, इनके प्रति जागरूक हो जाओगे, बोध हो जाएगा, तब ये शरीर, जब तुम नींद में सोने जाओगे तो थोड़ी देर जब तुम्हें पता चलेगा कि शरीर को तुमने पूरी तरह सुला दिया है और तुम भीतर से शरीर को सोते हुए देख रहे हो। और एक अवस्था आएगी, अगर मुझे आ सकती है तो आपको भी आ सकती है, कि मैं शरीर को पूरा सुला देता हूं और भीतर जागता रहता हूं। अभी आपको एक छोटा सा प्रयोग, 5 मिनट का एक प्रयोग समझा दूं। आर यू इंटरेस्टेड? ओके, तो अब मैं एक बहुत सुंदर प्रयोग आपको सिखा देता हूं। अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो ध्यान की सर्वोत्कृष्ट साधना है, जिसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हर व्यक्ति रात सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, यस और नो? तो मैं सिर्फ 13 मिनट की एक प्रक्रिया आपको देता हूं, जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा विस्फोट किया है और बहुत सारे मित्रों को जिन्होंने इसका अभ्यास किया है उनके जीवन में भी बहुत बड़ा रूपांतरण आया, आपके जीवन में भी। ये 13 मिनट बड़े कीमती। ये 13 मिनट की मिस्ट्री तो बाद में बताऊंगा फिर कभी, लेकिन आज इतना जान लो कि ये 13 मिनट की क्रिया है क्या। इस 13 मिनट की क्रिया में भी सिर्फ 3 मिनट की ही क्रिया है। अब और सरल हो गया काम आपका। सिर्फ 3 मिनट की क्रिया समझ लीजिए, सिर्फ 3 मिनट की क्रिया, और आपके जीवन में विराट विस्फोट, विराट अनुभव हो सकता है, चेतना का, परम आनंद का, आत्मा का, और विराट विस्फोट ऑफ ग्रेट एक्सप्लोजन ऑफ इमेंस इंटेलिजेंस। आप देखिए, रात
एक ही काम करना है कि जितना जल्दी हो सके शाम को बहुत जल्दी भोजन कर लेंगे, तब चेतना के जगत में आपको बड़े अद्भुत अनुभव, हमको जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें, ताकि जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो आपकी जीवन ऊर्जा भोजन को पचाने के लिए पेट में ना आ जाए, मस्तिष्क। आप भोजन कर लेते हैं और तुरंत बिस्तर पर सोते हैं तो बॉडी विजडम कहती है कि बॉडी की सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने के लिए पेट में आ जाती है, मस्तिष्क के पास ऊर्जा। जब मस्तिष्क में ऊर्जा नहीं होगी तो उसे ध्यान नहीं बनाया जा सकता, तब उसे आत्मा में नहीं ले जाया जा सकता। तब तो शरीर को जिंदा रखने के लिए बॉडी विजडम से इसकी एनर्जी विल कम इनटू द स्टमक, और भोजन को पचा कम से कम 3 घंटा पहले भोजन करें। के बाद जब रात बिस्तर पर जाएंगे सोने, तब फर्स्ट 1 मिनट पूरे बिस्तर पर लेट जाएं, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ और विश्राम पूर्ण होने का अनुभव। आपका शरीर ओबेडिएंट, आज्ञा पालन करता है। जो आप इसको आदेश करते भीतर से, वही शरीर करने लगता है। आप भाव करते हैं उठने का, शरीर उठ जाता है। आप भाव करते हैं चलने का, पैर चलने लगते हैं। तो वही शरीर करने लगता है। तो फर्स्ट 1 मिनट आपको भाव करना है शरीर के तल पर। अब मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण होता जा रहा है। सिर्फ भाव करना है 1 मिनट, मन ही मन। अब मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो जा रहा है, इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। 1 मिनट इस भाव से भरे रहेंगे तो आप पाएंगे कि 1 मिनट बीतते बीतते शरीर बिल्कुल समग्र विश्राम की अवस्था में आ गया है। एकदम आनंद की तरंगाने, शांत। अब शरीर जब विश्राम पूर्ण और शिथिल शांत हो जाता है तो उसका परिणाम होता है कि आपकी श्वास की भी मंद हो जाती है, श्वास धीरे। लेकिन दूसरे मिनट में 1 मिनट लगातार आपको भाव करना है, अब मेरी श्वास भी शांत होती जा रही, शिथिल शांत मंद होती जा रही, शिथिल शांत मंद होती। तो उस 1 मिनट में आप पाएंगे कि आपकी श्वासों की गति इतनी मंद हो गई है कि आप उसका हिसाब नहीं लगा। बिकॉज जो भाव करते हैं आपका शरीर उसको फॉलो करता है। अब आपकी श्वास की गति मंद हो गई 2 मिनट में, और जब श्वास की गति शिथिल शांत मंद हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता मालूम? तब आपके विचारों का आना भी बंद हो जाता है। लेकिन तीसरे मिनट में आपको भाव करना है कि अब मेरे विचारों का आना भी शिथिल शांत बंद होने लगा है। अब विचारों का आना भी शिथिल शांत बंद होने लगा है। 3 मिनट, तीसरे मिनट ये भाव करेंगे, विचारों का आना भी लगभग बंद सा होने लगेगा, हिल पड़ जाएगा। तो 3 मिनट बीतते बीतते आप पाएंगे कि आपने शरीर सुला दिया है, विचारों श्वास को सुला दिया है, और विचारों को भी सुला दिया है। आप हैं क्या? आप शरीर हैं, विचार हैं, श्वास हैं, और तल पर विचार हैं। तीनों तलों पर आप शिथिल शांत विश्राम पूर्ण हो गए। अब आप पाएंगे कि आपने, और अब भाव करें, शरीर पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो गया है, शिथिल है, शांत हो गया है।
लगभग सो गया है और आप भीतर सूक्ष्म प्रकाश के रूप में विराजमान हैं और साक्षी भाव से जो ध्वनियां चारों तरफ सन्नाटे में हो रही हैं उन ध्वनियों को साक्षी भाव से सुनते रहें। शरीर सो गया है, आप उस रात के सन्नाटे साइलेंस साउंड को, ध्वनि की आवाज हो, चाहे जैसे कुत्तों का भौंकना हो या कार की आवाज का, आप साक्षी भाव से, आपकी चेतना चारों तरफ जागरूक हो गई है। साक्षी चारों तरफ धन सन्नाटे को 10 मिनट तक साक्षी भाव से लाकर साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस को और इस अनुभव को 90 डेज तक गहराने दें। एक दिन आप पाएंगे 15 मिनट आप जागते रहेंगे और ये अभ्यास और गहरा और गहरा और गहरा हो जाएगा तो वह स्थिति उपलब्ध हो सकती है। भगवान कृष्ण का रहेगा, शरीर सोता रहेगा और तू जागता रहेगा। बुद्ध पुरुष हम उन्हीं को कहते हैं, एनलाइटेंड हम उन्हीं को कहते हैं जो 24 घंटे जागे हुए, नींद में भी वे जागे हुए रहते हैं और ब्रह्म चैतन्य तुम्हारी भी संभावना है। अब अध्यात्म का विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि अब एनलाइटनमेंट को पाने के लिए कोई 10, 20, 50 साल साधना करने की जरूरत नहीं। अगर आपके भीतर गहरी प्यास और प्रगाढ़ संकल्प पैदा हो जाए तो ये घटना 2, 4, 6 महीने में भी घट सकती है। आपके भीतर ऐसी महत्व प्यास और ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हुआ। राम जी, आप से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। Due to limitation of time, I request Guruji to allow us to conclude the session. Okay, beautiful. Now, I would like to request Honorable Chairman Sir and respected Director Ma'am to felicitate Guruji. On behalf of whole Sanskar group, I would like to thank our guest, Sadhguru Sakshi Shri Ji, for sparing his valuable time to enlighten us. We look forward for an opportunity to see you again in the near future for your continuous association with the Sanskar Educational Group. We also thank our Honorable Chairman Sir for his great support and motivation in arranging the session of Young Mind Movement. Thank you all. Now I request everyone to rise up for the national anthem. सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय हे। Thank you.